اب آپ یہ سب گواہ ہیں، کلمہ پڑھیں کہ میں بالکل کلمہ پڑھتا ہوں، اور دل سے پڑھیں کہ تاکہ الفاظ کے یاد رکھنا میں ہاں جی، تاکہ سب صورت تمہارے الفاظ میں۔ اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں، ہاں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، انہوں نے مناظرہ کیا، سارے کھڑے ہوں۔ جن ساتھی ہیں آپ کو 2-1 منٹ تسی بھی محنت کی سی کھڑے ہو مناظرے دے وچ، تسی بھی سی دل سے کھڑے ہونا، اور بالکل دل میں تمہارے ذرہ برابر بھی یہ نہ رہے تمہارے اس شخص نے، گمراہ نے، جو مرتد و کافر ہے، اس نے تمہارا ساتھ نہ دینا، کسی بھی قیمت میں ساتھ نہیں دے گا۔ ساتھ دینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دینا ہے، کہ نبی پاک غلاموں کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں یہ دو ہی کھڑے ہیں۔ نات اکیڈمی دے 8-9 بندے گئے سی، یہ سارے شامل نے، انہوں نے باقی بھی کھڑے ہو نا، سارے جنہیں مناظرہ کر گئے تھے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے نا آپ کی قاری ارشاد صاحب؟ شیخ الاسلام، مفتی اعظم مبلغ یورپ، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالغفور الوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اکابرین اہل سنت کے فرمودات کے مطابق جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کی تعلیمات پر گفتگو کی گئی ہے، اس شخص کے دنیا سے رخصتی کو 21 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو اس دن بھی لکھ کے دیا تھا، محترم قبلہ علامہ شاہد عمران جلانی صاحب اور جناب علامہ عمر فاروق جلانی صاحب کو، اور میرے پاس علامہ عبدالغفور الوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد عزت مآب قاری محمد ارشاد صاحب، حافظ علامہ نظر حسین سعیدی صاحب، مفتی عارف قدوسی صاحب اور حافظ افتخار نقشبندی صاحب بھی گئے۔ میرے ساتھ ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ جو تعلیمات ہیں ان کو آن کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ہرگز ان تعلیمات کو نہیں مانتا اور آپ کی موجودگی میں رجوع کرتا ہوں۔ جب میرے مناظرے کا معاملہ ہوا مفتی عمر فاروق صاحب سے، قبلہ الوی صاحب، قبلہ میں آپ سے جب میرا مناظرہ ہوا مفتی عمر فاروق صاحب سے اور جناب علامہ شاہد عمران جلانی صاحب سے، اس وقت بھی میں نے لکھ کر دیا، اب وہ جو لکھ کر دیا وہ سن لیجیے۔ میں نے لکھ کر دیا، جو بندہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا انکار کرے یا سوچے بھی وہ بھی کافر ہے۔ جو بندہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی آیت کا اضافہ یا کمی جانے وہ بھی کافر ہے۔ پھر میں نے انہیں لکھ کے دیا، جو بندہ نماز یا حدیث کا منکر ہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ میں نے ان کو کہا جو اکابر کی تعظیم نہ کرے میرے نزدیک وہ کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے۔ میں نے سب جگہ پہ ان کے سامنے بھی خود کو سیلنڈر کیا قبلہ، اور میں نے انہیں لکھ کر دیا کہ میں یہ جو تعلیمات جن پر فتویٰ ہے ان تعلیمات کا انکار کرتا ہوں۔ اور میں ان کے سامنے بھی میں نے کہا قبلہ کے قاری شاہ صاحب نے مجھے جس محبت سے اور جس ذمہ داری سے بلایا ہے، انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی ہو، ہم نے دیکھا تم نے 26 سال سے اس شہر میں نبی پاک کی غلامی کا دم بھرا ہے، تمہارا غیر شرعی عمل ہم نے انور بہزاد نہیں دیکھا، پورے رائمنڈ سے ہم نے گواہی تلاش کی کہ کسی ایک کو تم نے گمراہ کیا ہو۔ قاری شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا۔ میں ریاض احمد گوہر شاہی سے جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے فرمایا، اگر کسی کی خوشی ہے تو میں تو 3 بار ان کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، قادیانیت پہ لعنت بھیجتا ہوں، ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، قادیانیت کے ہر گروپ پہ لعنت، قادیانیت کے حامیوں پہ لعنت، قادیانیت کے حامیوں پہ لعنت، قادیانیت کو جو آن کرے ان پر بھی لعنت، جو قادیانیت کو ظاہر عابد سمجھے اس پر بھی لعنت۔ اور اب اللہ کے گور شاہیوں کون ہے جو اس کا بھی کہہ دو کہ گور شاہد برات کیا وہ قرآن کا بندہ منکر، حدیث کا منکر، جو بہوس میں تھا، گور شاہی جو تھا اس کا نام لے کے یہ مجموعہ بتا دو تاکہ میں پھر بعد میں کوئی اعلان کروں۔ یہ مجمع کی
जिद है तो मैं कह देता हूँ। हाँ जी, नहीं है, ये तकाज़ा है इस्लाम का। जिद नहीं है, ये मसले की रूह है। आपने कुरान और इस्लाम को इकरार करके आया। भाई बात खामोश। हाँ नहीं वो ऐसे तरद्दुद और तशद्दुद से बेईमानियां होती हैं, ईमान नहीं होते। मैं जब कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब मुझे कह रहे हैं, ठीक है। नाम लेके कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो ये अगर जब उन्होंने ये कहा, उनकी ये बातें सामने आ गई तो आपको अगर कहीं पे लाने उसकी तालीमात में वो जो गाने में साथ मिलाई है, उस गाने पे भी लाने। अब इसके बाद तो गला काटना रह गया। मुफ्ती साहब की बात तो सुन ले। बात सिर्फ इतनी बात है कि चूंकि गोहर शाही भी बात चल रही थी ना, कि आप उसके उसने ये कुफर बात कही है, आप कहें मैं उस पर लानत फैलता हूँ और मैं उसे बरियत की तरह करता हूँ और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। गौहर शाही ने, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, गौहर शाही ने तौहीद का इनकार किया है, कुरान का किया है, अगर खत्म नबूवत का किया है, अगर शायरिल्लाह का इनकार किया है, तो गौहर शाही पे ठीक है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सहाबा किराम का, खुलफा राशिदीन का अगर कोई मुनकिर है या शेखैन करीमैन को अगर कोई बुरा कहता है, मेरे नजर हमारे सबके नजदीक वो भी काफिर है। आपके जुमले में आपकी इजाजत से हम अहले सुन्नत व जमात जो बरेलवी हनफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हनफी हैं, हमने सारी जिंदगी यही कहा कि मसल के हक का, अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी अकीदे का उनसब और लाजमा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शेखैन का ठीक है ना, उसकी अहदियत, उसकी वहदानियत पर कामिल अमल यही कहता था कि अगर हजूर उसने कहा है नूर तो अगर वो की बात नहीं है। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानना, फिर अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखना, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन और खुलफाए राशिदीन को उनके मर्तबे और मुकाम के साथ इहतिसाब फैज़ करना, औलिया अल्लाह से इश्क और मोहब्बत का इजहार करना और नमूसे औलिया के लिए हर वक्त लड़ जाना, यही तो हमने सारी जिंदगी दर्स लिया है और दर्स लिया है। ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर उसने ऐसे कहा, अगर वो मत छोड़ो, उसने अकायदे के जो भी पूछे मैं ठीक हो गया। नवासर कह रहे हैं जो भी कहे, जिसने भी कहा है, और अगर कोई भी बंदा, मैंने उस दिन भी इनको लिख के दिया, मेरा माँ बाप, मेरा गौहर शाही, चाहे जो भी, उस पर लानत। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अगर की बात मैं कह रहा हूँ आप, मैं कह रहा हूँ कि जिसने कहा है गौहर शाही पे लानत है। कह रहा हूँ कि आज अगर गौहर शाही ने जो शरीयत की गुस्ताखी की है, उस पे लानत है। आज का जो मौजू है वो आसान लफ्जों में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पिछले दिनों हाई कोर्ट में मुनाजरा हुआ उलमाए अहले सुन्नत से गौहर शाही के मौजू पर। रियाज अहमद गौहर शाही एक आदमी गुजरा है, उसके वो कुफरिया अकायद हैं जो किबला मुफ्ती साहब ने आपके सामने बयान किए हैं, उसमें सिर्फ 3 बयान किए हैं। रियाज अहमद गौहर शाही कहता था कि कुरान पाक के 40 पारे हैं, वो कहता था कि चांद में मेरी तस्वीर आई है, वो कहता था कि नमाज और हदीस की कोई अहमियत नहीं। इस तरह के रियाज अहमद गौहर शाही के बहुत सारे दावे थे और तकरीबन वो 15-20 साल पहले मर चुका है। और जो अनवर तहज़ाब का मसला है, ये उनके साथ ताल्लुक रखते थे रियाज अहमद गौहर शाही के साथ। 2 साल पहले 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में मैंने ऐलान किया था कि ये जो सफेद झंडे पे दिल बना होता है, उस पे अल्लाह लिखा होता है कि रियाज अहमद गौहर शाही की तंजीम के लोगों का है। आप इस तंजीम में शामिल ना हो, उसके अकायद कुफरिया हैं। तो भाई कोर्ट में जो पिछले दिनों मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे में
उलमाए अहले सुन्नत ने उसके कुफरिया अकायद इनके सामने रखे तो इनको फिर मालूम हुआ कि वाकई उसके अकायद कुफरिया हैं। तो इन्होंने हम बाज़ाब्ता तौर पर हाफिज नदर मोहम्मद साहब और बंदा नचीद किबला मुफ्ती आरफ कुदूसी साहब, हाफिज इफ्तिखार साहब, हम इनके दफ्तर में गए और इनको उलमाए अहले सुन्नत के साथ रुजू करने का कहा कि अब आपको गौहर शाही के कुफरिया अकायद का पता चल चुका है, लिहाजा आप एक जलसा हम मुनक्कद करते हैं, उसमें आप तशरीफ लाएं। किबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल गफूर अलवी साहब ने भी इस पर एक फतवा लिखा है, रियाज अहमद गौहर शाही पर 2-3 दिनों में ही लिखा जो आपको कल कभी सुनाया गया है। तो आज अनवर बहजाद और उनकी कादरी नात अकादमी के लोग रजू करते हुए उलमा के कदमों में तशरीफ लाए हैं। चूंकि उलमा ने इनकी इस्लाह की है तो उलमा की इस्लाह को कबूल करते हुए ये रियाज अहमद गौहर शाही का नाम लेके उस पर लानत करेंगे, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और दीगर जो उलमा। ठीक है, ठीक। तो ये किबला मुफ्ती साहब ने इबारत लिखी है, क्योंकि रियाज अहमद गौहर शाही से आप ताल्लुकी का ऐलान करना है जब उलमा ये जो बात है ये मैंने नहीं लिखी, ये पहले मौलाना ने लिखी हुई है। मासूद ये इन दर्शों में वाज़े तौर पर आवाम के सामने कह दें कि वे गौहर शाही के यही ये अकायद है। अगर मगर उसने मैं उनको कह तो किया उसने, वो फिर कहते हैं मैं लानत भेजता हूँ और मैं बड़ी तरह हासिल करता हूँ मुसलमानों ने, मैं हमेशा लानत भेजता हूँ। ये पढ़ना है या जो आप सुनाए। मैं इन सारे मुफ्तियान और उलमाए कराम की मौजूदगी में जो मुझे किबला ने हुक्म किया है, मैंने उधर भी यही कहा था और ये भी कि मैं रियाज अहमद गौहर शाही पे लानत करता हूँ और उससे ऐलान ला ताल्लुकी करता हूँ। हम उलमा की मौजूदगी में हाजी अनवर बहजाद और उनकी नात कमेटी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपनी इस्लाह उलमा के पास आके की। और इसके बाद ये सुन लो, एक या 2 या 10 नहीं या मस्जिद में नहीं है, भाई इसमें चंद आदमी आ गए, पूरे मजमे के सामने उसने तौबा की है और उसने कहा कि लानत भेजता हूं उस पर, याद आकर किसी ने ससावत की इसको इनको तकलीफ पहुंचाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। मैं खुद उसका मुखालिफ हूं। किबला मुफ्ती साहब ने उनके ऐलान ताल्लुकी के बाद उनको क्लियर कर दिया है। अब कोई दोस्त भी इस कादरी नात अकादमी को और हाजी अनवर बहजाद को तानो तशरीह नहीं करेगा। आज की महफिल सजाने का मकसद यही था कि वो बातें जो मोबाइल पर चल रही थी लोगों को पता नहीं था, उलमा की मौजूदगी में उलमा के कदमों में इन्होंने आकर रुजू किया है, इस्लाम को कबूल किया है और तौबा की है, ऐलान ताल्लुकी किया है। और आज के बाद उलमा अहले सुन्नत के किसी भी स्टेज पर ये खड़े होकर नात पढ़ें, तकरीर करें, उलमा की तरफ से आम इजाजत है। ठीक है, तो भाई साहब अब आप पूछे जाते हैं। किबला मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। किबला हाजी अनवर बहजाद साहब को किबला ये इस्लाह के तौर पर ये आप हाथ पाकर क्लियर का और तमाम हाज़रीन के लिए लंगर का वसीम इंतजाम किया है। मुफ्ती साहब दुआ